चिड़ 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 लगी, उधर जाके करो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। कैसे हैं आप लोगों को? फाइन सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सर। कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सो शुड वी स्टार्ट? Hello, should we start, students? Yes, sir. Okay. So today we are going to discuss the remaining points of the topics. One is the politeness and the other is the relevance. So first we are going to discuss politeness. So come to the page 148. 148, chapter number 10 from the book George Yule. Chapter 10, Pragmatics. George Yule's book, page 148. Did you people find? Yes, sir. So if you have any question regarding what we discussed yesterday. Students, do you have any queries, any problems, any questions? Hello? No question, sir. Uh, I'm unable to understand what the problem is with the students. That when something is asked, at least they have just to say yes or no. But even then, most of the students don't bother even to respond to the teacher when he is frequently asking if you have any question, if you have any question. At least they can just turn the mic on and say yes or no. Even to elicit this short response from you, the teacher has to call time and again. This is really very shameful, I would say. This is not appreciable act on the Sorry, part of sir. the students. What type of students you people are? And what you are getting from the education? But information, that can be just a piece of information. This is not education. If it does not bring any change in your behavior and your attitude, so we can't say that or being trained. This is not for the first time. And I'm sure that I may not be the first person. You may be behaving like this with all the teachers. And all the teachers, or most of the teachers, they may have the same type of complaints as I have. And it makes no difference to the people or the students, they always remain indifferent. Mind, this is in fact, this is a very decisive factor. This will decide what you are going to get in your future life.
There are some other factors. No one succeeds on the basis of just information or knowledge. Never. I have never seen such a student. In fact, it is your morality, it's your ethics, your attitude and your behavior, how you deal with other people, particularly how you deal with the teachers. This is in fact going to decide, it is going to determine what you get and how. And these things will be clear to you people when you enter the practical life. Better not to join the class if most of the students have to be as indifferent and as irresponsive Sorry, sir. as you people are. No need to attend the class. We will simply record the lecture and send the link in your Google Classroom. Okay, you can find it. No, sir. Sorry, sir. And of course, I'm right to say that it is the attitude of the students that discourages the teacher, that demotivates the teachers. And it is the interaction and the response, positive response from the students that gives more motivation to the teacher as well, that encourages and appreciates the teacher. And this is the appreciation that gives us energy to speak on from morning till evening. And this is the attitude that you people are behaving or showing that discourages the teachers. And so we are going to discuss, rather I should say I am going to discuss, because you people don't want to be the part of what is going on in the class. So I'm going to discuss the topic politeness. That is the second last of the outline content. So this is not something new. The word politeness, this is very common. And all of you might have heard, rather must have heard the word politeness many times in your day-to-day conversation and life. If we generally talk about politeness, we can say that politeness means having or showing good manners and respect for the feelings of others. So this is in fact the definition offered by one of the linguists. He is of the opinion that politeness means having or showing good manners and respect for the feelings of others. And it should also be keep in mind that politeness may not always be a matter of words, but how you say the words. It means that what words you select, what words you choose, what is your word choice. Of course, it is important, but it is not only important. Another thing that is important at the same time equally, that is the way you utter the words. It includes your intonation, particularly the tone you use in order to say the words, the emphasis you give to particular words, your paralinguistic, in other words, we can say. So only the selection of linguistic items, only the selection of words, expressions, sentences. This is not only मेरी आवाज आपको कहाँ पे आना बंद हुई थी अरीज? I lost network Sir, connection. सर जी आ रही है। ब्रेक हुई थी थोड़ी देर के लिए.
जी जी, कहाँ पे था? व्हाट वाज द पॉइंट आई वाज डिस्कसिंग? सर पैरालिंग्विस्टिक्स की बात हो रही थी, वहां से ब्रेक हुई। Okay, right. Okay. So paralinguistic, एक side पे we have the linguistic elements, and the other hand we have the paralinguistic. So paralinguistic that includes with how we say our gestures are there. We can say if there is face to face, बॉडी लैंग्वेज। body language is there, the tone is there. जी जी, yes of course, body language उसके अंदर मौजूद है. So when we talk about politeness in pragmatics, about pragmatics, what is pragmatics? Study of meaning in particular Contextual context. study of Okay, very good. Study of meanings in context. Or in other words, we can say that pragmatics is the study of the invisible meaning, or pragmatics is the study of speaker's meaning, or pragmatics is the study of speaker's intentions or intended meanings. So politeness, that no doubt we have to communicate. We are not going to change the idea. हमने कोई अपना आइडिया चेंज नहीं करने ना polite होते हुए, लेकिन हम politeness में इस तरह से अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं अपने कम्युनिकेशन पार्टनर को, इस तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं कि एक जो उसकी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में और इन द आईज ऑफ द अदर पीपल, दैट शुड नॉट बी हर्ट, दैट शुड नॉट बी इंजर्ड, दैट शुड नॉट बी डैमेज्ड. तो उसका एक जो इमेज है इन द आईज ऑफ द पीपल, वो उसी तरह से कायम रहे और हम अपना स्पीच एक्ट परफॉर्म कर लें. डिफरेंट स्पीच एक्ट हमने जो है वो देखे हुए हैं. तो आपका वट एवर द पर्पस ऑफ योर कम्युनिकेशन इज, ऑफ योर अटरेंस इज, तो उसको इस तरह से जो है वो करना कि उसकी जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट ना हो, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो माशरे में हर्ट ना हो, एंड द पर्सन मे नॉट फील इंसल्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वेरी अटरेंस, और वो इंसल्ट फील ना करे. तो इट मीन्स दैट यू आर शोइंग पोलाइटनेस. तो ये पोलाइटनेस इसके अंदर जो है वो है. जस्ट शॉर्ट स्पोकन की बात नहीं है. आपने एक ऑर्डर भी देना है तो हाउ यू से, आप ऑर्डर भी कैसे देते हैं, उसके अंदर आपकी टोन जो है वो क्या है. ओके, तो अगर आपने किसी अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर भी देना है, इट इज इफ सम पीपल आर सिटिंग एंड यू ऑर्डर दैट वेरी पर्सन, shut the door. And even if you are going to order and you say shut the door, so it is the way you say. So in the first example, your tone is harsh, rough. Example is also imperative. उसके अंदर भी ऑर्डर मौजूद है, कमांड मौजूद है, लेकिन दोनों के अंदर द वे यू से, वे थोड़ा सा उसके अंदर है कि इन द कंपनी ऑफ द पीपल. तो वो दिल में सोच सकता है कि अब लोग बैठे हैं तो चलो मुझे आराम से कह लेते हैं. एंड पर्टिकुलरली अगर आप तन्हाई में जो है वो देयर इज नो वन करें तो इतना फील नहीं होता. और अगर इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल, और खासतौर पे अगर उसको जानने वाले हैं याद करें, तो उसको लगता है कि गोया उसका जो एक इमेज है वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो गया, उसका उसकी जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट हुई हैं. तो इस तरह से हम पोलाइटनेस का शो कर सकते हैं. अपने वर्ड्स को इस तरह से अटर करें कि वो दूसरों के फीलिंग्स को डैमेज ना करे, डिस्ट्रॉय ना करे या हर्ट ना करे, और उनकी दिल शिकनी जो है वो ना हो. We can think of politeness in general terms as having to do with ideas like being tactful, modest, and nice to other people. अब अगर जनरल टर्म्स में जनरली हम पोलाइटनेस को लें तो हम डिस्कस कर सकते हैं पोलाइटनेस को जनरल टर्म्स में कि इफ वी आर टैक्टफुल, जनरली अगर हम टैक्टफुल हैं, टैक्टफुल क्या होता है कि आपको पता हो कि यहाँ पे ऐसे बात करनी है. आप खुद जब ये सोच रहे कि यार लोग बैठे हुए हैं तो मैं इसे ऐसे ना बात करूं, बाद में मैं बात कर लूंगा इसे ऐसे. अब ये आप टैक्टफुल हो रहे हैं कि आपने किस तरह से करना है. और इसी तरह से मॉडेस्ट आप हो रहे हैं. मॉडेस्टी सिर्फ जनरली ये कहते हैं ना कि मॉडेस्टी जो है वो आमतौर पे नॉवेल्स वगैरह में चीजों में आप देखते हैं, तो मॉडेस्टी के एक सेंस तो ये है कि बीइंग जो है वो आप जब इमोरल नहीं होते, क्योंकि आपकी जो एक पाक दामनी है, पाकबाजी है, वो भी मॉडेस्टी है. बट एट द सेम टाइम आपके अंदर जो एक एलिमेंट ऑफ जो है वो ह्यूमैनिटी है, एक एलिमेंट ऑफ हम्बलनेस है उसके अंदर, ये भी आपकी जो है वो मॉडेस्टी है. सो बीइंग मॉडेस्ट मींस हियर बीइंग अ बिट हम्बल एंड बीइंग अ बिट जो है वो मॉडरेट इन योर टेम्परेचर.
इन योर टेम्परामेंट। कंप्रोमाइज जी, मॉडेस्ट मॉडेस्ट कंप्रोमाइज हो सकता है कि इसके मीनिंग्स में से एक कंप्रोमाइज भी हो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन यहाँ पे कंप्रोमाइज मतलब थोड़ा सा एडजस्टेबल नहीं लग रहा मीनिंग। एंड नाइस टू अदर पीपल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। ये जनरली हम इसको जनरल टर्म्स में पोलाइटनेस को ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। इन द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक पोलाइटनेस, और अगर हम जैसे मैंने कहा प्रैग्मेटिकली अगर हम लें, लिंग्विस्टिक सिनेरियो में अगर हम पोलाइटनेस को लें, द मोस्ट रेलिवेंट कॉन्सेप्ट इज फेस। तो इसमें एक चीज हम ध्यान में रखते हैं वो फेस है। अभी जो मैंने आपको बताया ना कि एक हर एक का इमेज होता है, और अगर आपको याद हो ड्यूरिंग द सेकेंड सेमेस्टर आप लोगों ने एक कोर्स स्टडी किया था, लैंग्वेज कल्चर एंड आइडेंटिटी। लैंग्वेज कल्चर और आइडेंटिटी में हमने फेस सेविंग जो है वो पढ़ा था, और ये परहैप्स जो है वो मल्टी कल्चरल हमारा कम्युनिकेशन जो है वो था, और उसके अंदर हमने किया था। तो ये वही है, क्योंकि वहाँ पे भी हमने उसको लिंग्विस्टिक सेंस में किया था। तो लिंग्विस्टिक सेंस में जो फेस होता है वो एक हमारा एक इमेज होता है, एक हमारी ऑनर होती है, प्रेस्टीज होती है, एक एस्टीम होती है इन द आईज ऑफ द अदर पीपल। तो वो जो पब्लिक इमेज है लोगों की नज़र में, दैट इज कॉल्ड फेस। वहाँ पे फेस का मतलब जो है वो ये है। तो जब हम पोलाइटनेस को लिंग्विस्टिक टर्म्स में डिस्कस करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फेस, योर फेस इन प्रैग्मेटिक्स इज योर पब्लिक सेल्फ इमेज। तो जब हम प्रैग्मेटिक्स में फेस को लेते हैं तो ये हर इंसान का दूसरों की नज़रों में, मुआशरे में एक इमेज है, एक उसकी एक तस्वीर है, उसके जहन में एक इज्जत है, मकाम है, वकार है। तो दैट इज कॉल्ड फेस। This is the emotional and social sense of self that everyone has and expects everyone else to recognize. जिस तरह से हमने आइडेंटिटी के भी देखा था ना कि आइडेंटिटी क्या होती है, who we are, how we perceive ourselves and how others perceive us. अब जो एक आइडेंटिटी है, इसी तरह से हमारा एक इमेज है अपने बारे में। अब वो इमेज, हर इंसान का अपने बारे में एक इमेज है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, और वो चाहता है कि दूसरे लोग भी उसको वैसे ही रिकॉग्नाइज करें कि जिस तरह से हर इंसान है, कोई भी नहीं चाहता कि दैट शुड बी इंसल्टेड, ही शुड बी ह्यूमिलिएटेड। तो ईच एंड एवरी पर्सन है वो वांट्स दैट ही शुड बी रिस्पेक्टेड, और एटलीस्ट जब ही शुड बी गिवन द रिस्पेक्ट विच ही डिजर्व्स। तो जितनी वो रिस्पेक्ट या ऑनर डिजर्व करता है तो उतनी तो कम अज कम उसे जब वो मिले, अगर उससे ज्यादा नहीं। अब ये जो हमारा फेस है ये इमोशनल एंड सोशल सेंस ऑफ सेल्फ है। अब इसके साथ हमारी सोसाइटी भी मुंसलिक है और हमारे अपने फीलिंग्स भी उसके साथ मुंसलिक हैं। सोशल इस वजह से है बिकॉज वो हमारा पब्लिक सेल्फ इमेज है जो लोगों की नज़र में है, और इमोशनल इस वजह से है बिकॉज आवर इमोशंस दे आर अटैच्ड एंड एसोसिएटेड विद दैट इमेज। और अगर कोई उस इमेज को किसी भी तरह से हर्ट करता है तो हमारे जो फीलिंग्स हैं उससे रिलेटेड वो इनफेक्ट जो है वो हर्ट होते हैं। तो इस वजह से ये इमोशनल और सोशल सेंस है हर इंसान का अपनी ज़ात के बारे में, और हर इंसान इस सेंस को रखता है एंड एक्सपेक्ट्स एवरीवन एल्स टू रिकॉग्नाइज। और वो ये तवक्को करता है कि उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, सोसाइटी के बाकी जो मेंबर्स हैं, वो उसके इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करें दैट ही हैज़ अ जो है वो सेल्फ इमेज, सेल्फ ऑनर, उसकी भी एक जो है वो इज्जत है। Politeness can be defined as showing awareness and consideration of another person's face. अब लिंग्विस्टिक सेंस में, कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में पोलाइटनेस को हम क्या कहेंगे कि पोलाइटनेस मीन्स शोइंग अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन ऑफ अनदर पर्सन's फेस। तो दूसरे पर्सन का जो एक इमेज है, जब आप गुफ्तगू करें, बात करें, उससे कम्युनिकेट करें, आइदर इन स्पीच और इन राइटिंग, बोल के करें, लिख के करें, तो आप इस बात को शो करें कि आपके जहन के अंदर उसका फेस रहना चाहिए, उसका पब्लिक इमेज रहना चाहिए। तो इट मीन्स कि आप ऐसी वोकैबुलरी यूज करें, ऐसा स्टाइल यूज करें, आप ऐसे उसके अंदर टोन यूज करें, और द वे ऑफ डिलीवरिंग द वर्ड्स आप इस तरह से यूज करें कि हिज फेस इज नॉट गोइंग टू बी डैमेज्ड और इंजर्ड, कि किसी भी तरह से उसका जो पब्लिक इमेज है वो शैटर ना हो। if you say something that represents a threat to another person's self image, that is called a face threatening act. अब हमने बात कर ली फेस की, फेस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया कि फेस हमारा जो है वो क्या है।
अब हमारे जो एक्ट है, यानी हमारा जो कम्युनिकेशन एक्ट है, वो दो तरह का हो सकता है। अगर हम उसके फेस को रिटेन करने की कोशिश करते हैं और उसके इमेज को उसी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपनी गुफ्तगू में, तो वो हमारा फेस सेविंग एक्ट है। और अगर हम उसके सेल्फ इमेज को, फेस को शैटर करने की कोशिश करते हैं किसी भी तरह से, कोई भी ऐसा वर्ड यूज करके या कोई ऐसी टोन यूज करके, तो वो हमारा फेस थ्रेटनिंग एक्ट हो जाएगा। यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से आवर स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैन hurt someone's feelings and that can injure someone's self image, that is face threatening act, और जो इसके उलट है that is face saving act. For example, if you use a direct command to get someone to do something, give me that paper. अब ये कमांड है, हमें पता है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इसके भी अभी मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, आपने किसी को ऑर्डर भी देना है, तो अगर आप उसको इस अंदाज में ऑर्डर जो है वो देते हैं, एक डायरेक्ट कमांड आप यूज करते हैं और फिर आपकी टोन भी ऐसी हो जाती है, गिव मी दैट पेपर। अब ये आपका उसका जो अगर इमेज उससे डिस्टर्ब होता है, पर्टिकुलरली इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल, तो दैट इज फेस थ्रेटनिंग एक्ट। इस किस्म का ऑर्डर देके यू आर हैविंग एज इफ यू हैव मोर सोशल पावर देन द अदर पर्सन। अब जनरली हम क्या करते हैं, एक तो है बॉस और सबऑर्डिनेट। अब उसके अंदर तो है ही है कि जो बॉस है, द बॉस पोजेसेस मोर सोशल पावर देन द सबऑर्डिनेट। द फादर हैज मोर सोशल पावर देन द सन। द टीचर हैज द मोर सोशल पावर देन द स्टूडेंट। एक ऑफिसर हैज मोर पावर देन हिज जूनियर्स। सो अब ये तो एक सोशल पावर है। और अगर तो एक सोशल पावर का भी आप इस तरह से यूज करते हैं कि आप उसको एक्स्ट्रा रूड होके बात करते हैं, चाहे वो आपका सबऑर्डिनेट है, आपसे जूनियर है, तो इवन देन दैट पर्सन्स इमेज इज शैटर्ड। और अगर आपके पास सोशल पावर नहीं है, आप कोलीग्स हैं, इक्वल रैंक के हैं, आप पीयर्स हैं, आप क्लासमेट्स हैं, और यू आर द एम्प्लॉयज ऑफ द सेम रैंक, कोई बॉस नहीं है, कोई उसके अंदर चाहे वो सबऑर्डिनेट नहीं है, कोई सीनियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है, कोई मोर पावरफुल कोई लेस पावरफुल नहीं है, इक्वल है। और अगर वहां पे आप इस तरह से कमांड यूज करें, डायरेक्ट कमांड यूज करें, तो दैट इज एब्सोल्युटली गोइंग टू डैमेज दैट पर्सन्स सेल्फ इमेज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। चाहे आप बाद में उसको कंपनसेट करने की कोशिश करें, सॉरी करें, लेकिन बट द फर्स्ट जो एक उसने इंजरी करनी है, जो अटैक है, तो दैट कैन बी इनफ टू डिस्ट्रॉय समवन्स सेल्फ इमेज। तो इसलिए अगर आपके पास सोशल पावर नहीं है, तो देन तो ये मतलब फिर तो ये बिल्कुल नाकाबिले माफी है। और अगर आपके पास सोशल पावर है, तो ओके, सोसाइटी ने या वो उसने अथॉरिटी आपको दी है, तो आप उसको यूज करें, बट इवन देन यू शुड बी अ बिट मॉडेस्ट। तो मोरालिटी और एथिक्स ये तकाजा करते हैं कि आप इस पर्पज के तहत अपनी ताकत को उसको ना दिखाएं, दैट यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय अदर्स है वो इमेज। इफ यू डोंट एक्चुअली हैव दैट सोशल पावर, अगर हमारे पास वो नहीं है, सोशल पावर नहीं है, तो यू फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट अ मिलिट्री ऑफिसर और प्रिजन वार्डन, मतलब कोई भी सोशल पावर आपके पास नहीं है, then you are performing a face threatening act. Yes, Shamila, you raised a hand. Okay, yes please. सॉरी सर, बाय मिस्टेक हो गया था। Okay, okay, right, no issue. Okay, तो अगर अब आपके पास जो है वो सोशल पावर नहीं है, तो then you are performing a face threatening act. An indirect request in the form associated with the question, could you pass me that paper, removes the assumption of social power. अब अगर आप for example if you are sitting in the company of the people, वो आपको जानते हैं, आपके किसी कोलीग को नहीं जानते, आप एक ऑफिस में बैठ के दो लोग काम करते हैं और कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं, और आप अपने कोलीग से ये कहते हैं, कुछ भी कहना है आपने, पेपर दे दें, ये जरा मुझे पेपर पकड़ाएं, ये करें। अब इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल
अब आपके पास सोशल पावर तो कोई नहीं है, आपके पास कोई सोशल पावर नहीं है, दोनों इक्वल रैंक के हैं। तो अगर आप ये डायरेक्ट कमांड यूज करते हैं, गिव मी दैट पेपर, पेपर पकड़ाओ जरा ये, अब इसके अंदर एक फेस थ्रेटनिंग एक्ट है कि ये ऐसा लग रहा है कि गोया आप उसके बॉस हो या आप क्योंकि सुपीरियरिटी हो इस वजह से आप कर लें। अब इस चीज का एक मुलाजम को आप कह दें, पीएन को कह दें, ओके, दूसरे लोग जो है वो समझ जाते हैं कि ये पीएन है, आपके साथ ही बंदा जो है वो दूसरी चेयर पे बैठा है, आप उसको जो है वो इस तरह से अंदाज में बात करें तो ऑफ कोर्स दूसरा बंदा फील करेगा कि उसका सेल्फ इमेज जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। अगर आप इसको कंपनसेट करना चाहते हैं कि लोगों के ज़हन में ये जाए ही ना कि ये बंदा जो है वो आपके जूनियर है, आपका जूनियर है या आपका जो है वो कोई इस तरह से है, आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं, तो उसके लिए हम इनडायरेक्ट जो है वो यूज करते हैं क्वेश्चन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, इम्प्लीकेशन में भी डिस्कस किया, डायरेक्ट और स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट में भी किया कि जब आप किसी को एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हम बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जो है लगाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जनरली तो इट इज प्योरली, इसका जो पर्पस है वो तो ये ना कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, लेकिन सम टाइम ये इनडायरेक्ट पर्पस परफॉर्म करता है। इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट होता है कि जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को रिक्वेस्ट के तौर पे जो है वो कहते हैं, तो ये आपके पास जो है वो मौजूद है। ओके, कि आप कैन यू लिफ्ट द बॉक्स, फॉर एग्जांपल आप किसी को ये कहते हैं कैन यू लिफ्ट द बॉक्स, अब आपसे ये पूछ नहीं रहे कि आप जब उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते, आपके अंदर ये पावर है कि उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते, इनफैक्ट आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझसे नहीं उठ रहा, तो अगर आप उसमें मेरी हेल्प कर दे तो ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, हम उसको यूज कर रहे हैं एक रिक्वेस्ट के लिए। ऐसे ही यहाँ पे एग्जांपल है, कुड यू पास मी दैट पेपर, अब उसी को कहना गिव मी दैट पेपर, कुड यू पास मी दैट पेपर। अब दोनों के अंदर जो वो क्या है कि ये इनडायरेक्ट है और इसके अंदर आपकी एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो इससे ये असम्पशन खत्म हो जाएगी किसी दूसरे के जहन के अंदर कि आप उसको जो है वो ऑर्डर दे रहे हैं। तो इस तरह से आप उसके इमेज को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो कि एक फेस सेविंग एक्ट होगा। यू आर ओनली आस्किंग इफ इट इज पॉसिबल, क्योंकि इसके थ्रू से पूछ रहे हैं कि अगर आप मतलब बिजी नहीं है तो अगर आसान है आपके लिए तो आप मुझे ये पेपर दे दें। दिस मेक्स योर रिक्वेस्ट लेस थ्रेटनिंग टू द अदर पर्सन फेस। अब ये जो चीज है तो वो दूसरे पर्सन का जो इमेज है उसको थ्रेटन नहीं कर रहा। एज अ रिजल्ट वेन एवर यू से समथिंग दैट लेसन्स द पॉसिबल थ्रेट, जो चीज कम कर दे, ठीक है ना, LESSEN लेसन होता है टू रिड्यूस समथिंग, कम कर देना किसी चीज को। तो ये जो हमारा इनडायरेक्ट हमारा वे है, तो इट कैन लेसन द पॉसिबल थ्रेट टू अनदर फेस, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ फेस सेविंग एक्ट। जी, yes, is it clear the point that we have discussed? Yes, sir. so far? Okay, Yes, sir. Yes, sir. now come to the negative and the positive phase. The phase can be interpreted as positive phase और एक नेगेटिव फेस। अब हमने कह दिया फेस तो जो है वो पब्लिक इमेज होता है, हर एक का जो एक सेल्फ पब्लिक इमेज है वो फेस है। तो फिर पॉजिटिव फेस और नेगेटिव फेस, पॉजिटिव फेस हम इसको ऐसे नहीं समझ लेना कि पॉजिटिव फेस है कि अगर अच्छा इमेज है तो वो पॉजिटिव फेस है और नेगेटिव इमेज है तो वो बुरा फेस है। नहीं, यहाँ पे नेगेटिव का मतलब बुरा नहीं है। जिस तरह से आप एक सेल लेते हैं, उस सेल का एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड होता है, तो वहां पे क्या नेगेटिव का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव अच्छा एंड और नेगेटिव बुरा एंड? No, sir. नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, मतलब कहीं पे हमारा होता है, जैसे हम कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड नेगेटिव एटीट्यूड, तो वहां पे होता है पॉजिटिव एटीट्यूड इन द सेंस ऑफ गुड एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड दैट इज टेकन इन द सेंस ऑफ द बैड वन। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस positive that can be just the antonym of negative, that can just be the antonym of positive। तो पॉजिटिव का बिल्कुल जो है वो जस्ट एक जो है उसका एंटोनिम है, तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं, जिसका मतलब हरगज बुरा नहीं होता। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव फेस, आप इसको यूं, हमारे पास ये जो पोलाइटनेस थ्योरी है, अंडर पोलाइटनेस थ्योरी we have negative face and positive face। हमारा जो एक पॉजिटिव फेस होता है, ये इस बात को भी रिफ्लेक्ट करता है दैट ईच एंड एवरी पर्सन ही हैज द डिजायर दैट हिज सेल्फ इमेज शुड बी अप्रूव्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय अदर्स। हमारा जो पॉजिटिव फेस है, तो पॉजिटिव फेस इस बात को भी रिफ्लेक्ट करता है
कि each and every person or member of the society, he has the strong wish that his self-image should be approved by others, they should recognize it, and that should also be appreciated by others. जैसे at the beginning we discussed कि each and every person has a self-image and this is what he expects others to recognize, और वो चाहता है कि उसको उसी तरह से recognize किया जाए, identify किया जाए, approve किया जाए, appreciate किया जाए. Anyhow, we have both negative face and positive face. So here the point has been made clear that negative doesn't mean bad. Here it is simply the opposite or antonym of positive. So we are not taking it in that very sense that is something bad or immoral, unethical, or so on. Not at all. Negative face is the need to be independent and free from imposition. अब नेगेटिव फेस ये है कि आपको इस तरह से पोर्ट्रे किया जाए, लोग ये समझें कि यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम, आप उनके मोहताज नहीं हैं. आपका नेगेटिव फेस ये डिमांड करता है दैट यू शुड बी कंसिडर्ड डिपेंडेंट, यू शुड बी कंसिडर्ड फ्री, you should be considered you can say the master of your own opinion, the master of your own decisions, and free from imposition, and you cannot be forced to do something, you cannot be, something cannot be imposed on you, आपके ऊपर नहीं किया जा सकता. यानी इन अदर वर्ड्स जब हम कहते हैं कि आपका नेगेटिव फेस ये कहता है दैट यू शुड बी कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंस रिफर्स टू अ पर्सन्स राइट नॉट टू बी डोमिनेटेड. तो डिपेंडेंस क्या है कि वही कि आपके ऊपर कोई, आपके ऊपर जब आपको डोमिनेट नहीं किया जा रहा, आपको मजबूर नहीं किया जा सकता बाय अदर्स, दूसरे आपको मजबूर नहीं कर सकते. या यूं भी कह सकते हैं आप कि इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो रिफर्स जो वो दैट यू हैव द राइट टू एक्ट विद सम सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं और आप अपने अंदाज में काम करेंगे, एंड यू कैन एक्ट विद ऑटोनॉमी, आप खुद मुख्तारी के साथ जो है वो काम जो है वो कर सकते हैं. इट मीन्स कि नेगेटिव फेस का मतलब ये है कि आपको कोई ऑर्डर देना है तो डायरेक्ट ऑर्डर ना दिया जाए, फोर्स ना किया जाए, आपसे ये कहा जाए अगर आपके लिए मुमकिन हो तो मेरे लिए भी एक चाय का कप लेते आइएगा, ठीक है, अगर आपके लिए मुमकिन हो. इट मीन्स कि यू आर गिवन एन ऑप्शन हियर, आपको एक ऑप्शन जो है वो दे दी गई है. ओके, या आप कह सकते हैं आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट इफ यू कुड प्लीज लेंड मी योर मोबाइल फोन. अब आप अपोलोजाइज कर रहे हैं. जब आप अपोलोजाइज करते हैं या किसी को ऑप्शन देते हैं तो इट मीन्स ये शो करता है कि अगर आप चाहें तो दे दें, चाहें तो इनकार कर दें. यू आर नॉट बाउंड टू एक्ट अपॉन व्हाट द स्पीकर सेज, you are not bound, that is not obligatory for you, that is not mandatory for you, ये आपके लिए जरूरी नहीं है. तो so you are independent, you are free to accept that or to reject that. ये हमारा नेगेटिव फेस इस तरह की है कि नेगेटिव फेस इंडिविजुअलिटी है, उसमें नेगेटिव फेस में इंडिपेंडेंस है, नेगेटिव फेस के अंदर जो है वो फ्रीडम फ्रॉम इम्पोजिशन है कि आपको कोई Influence नहीं कर रहे. जी किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होता उनके ऊपर. जी मरियम, दे आर फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस. आपकी ना वर्ड की समझ नहीं आई. सर नेगेटिव फेस में वी आर फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस. जी जी, फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस कह सकते हैं. इन्फ्लुएंस का मतलब जो है वो यही है कि मतलब यू कैन नॉट बी डोमिनेटेड, यू कैन नॉट बी कंपेल्ड टू एक्ट अपॉन व्हाट इज सेड. तो जरूरी नहीं है. तो आपका नेगेटिव फेस मतलब ये है कि आपको इस तरह से ट्रीट किया जाए कि आप गोया उनके किसी के हुक्म के गुलाम नहीं है. ठीक है, तो नेगेटिव फेस जो है वो हमारा ये है. हर इंसान के अंदर जो है वो ये एक नेगेटिव फेस होता है कि नीड ये होती है कि उसे उस तरह के जो है वो इंडिपेंडेंट भी समझा जाए और उसे फ्री फ्रॉम इम्पोजिशन समझा जाए, कि उसे उस पर इम्पोज ना किया जाए. लेकिन अगेन ये फिर बहुत सारे सोशल कॉन्टेक्स्ट होती हैं जिनके ऊपर ये चीजें होती हैं. एनी हाउ वी आर जस्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं टू टाइप्स ऑफ फेस. तो नेगेटिव फेस हमारी ये ज़रूरत है माशरे के अंदर रहते हुए, हमारी ये एक डिज़ायर है, हमारी जो है वो ये एक ख्वाहिश है कि हमें इस तरह से जो है वो इंडिपेंडेंस भी दी जाए, हर काम में हमें जो है वो दूसरों का मोहताज ना समझा जाए. दूसरी तरफ जो हमारा पॉजिटिव फेस है, पॉजिटिव फेस इज द नीड टू बी कनेक्टेड. अब देखिए वो था इंडिपेंडेंट और ये है कनेक्टेड. टू बिलोंग, टू बी अ मेंबर ऑफ द ग्रुप. अब यहाँ पे अब वहाँ पे इंडिपेंडेंस, इंडिविजुअलिटी,
यहाँ पे आपकी सॉलिडारिटी, यहाँ पे आपकी मेंबरशिप इन द सोसाइटी, जी आपका जो है वो एक पॉजिटिव फेस जो है वो ये नीड है कि जो है वो आपको नीड टू बी कनेक्टेड, कि आप जो है वो सोसाइटी में जो है वो रह रहे हैं, सोसाइटी के अंदर रहते रहते, देखिए हर इंसान की इंडिविजुअलिटी भी होती है और मेंबरशिप इन द सोसाइटी भी होती है, इजंट इट? ऐसा ही होता है ना कि वी आर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। जिस तरह से आप जो है वो स्टूडेंट्स हैं, यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, आप एक क्लास के जो है वो स्टूडेंट हैं, बट एट द सेम टाइम हर जो है वो स्टूडेंट की एक अपनी जो है वो यूनिक पर्सनैलिटी है, उसकी अपनी जो है वो एक इंडिविजुअलिटी मौजूद है। तो दैट इज हमारी एक डाइवर्सिटी भी हो सकती है, और डाइवर्सिटी के अंदर हमारी जो है वो एक इंडिविजुअलिटी भी उसके अंदर मौजूद है, यूनिकनेस मौजूद है। Positive face is the need to be connected, to belong, to be a member of the group. So a face saving act that emphasizes a person's, so now यहाँ तक आपकी ये दो जो चीजें हैं ये क्लियर है कि नेगेटिव फेस क्या है। नेगेटिव फेस हमारी ये नीड है कि हमें इंडिपेंडेंट समझा जाए, इंडिविजुअल जो है वो समझा जाए, फ्री फ्रॉम इम्पोजिशन, ये। और दूसरा जो है वो हमारी फेस सेविंग ये भी है, ये इस बात पे कर दिया कि हर इंसान जो है वो एक सोसाइटी का हिस्सा है या उस ग्रुप का हिस्सा है, वेयर ही लिव्स, जहाँ पे वो रहता है, काम करता है, ये। नाउ अ फेस सेविंग एक्ट दैट एम्फसाइजेस अ पर्सन्स नेगेटिव फेस विल शो कंसर्न अबाउट इम्पोजिशन। अब हम बात कर रहे हैं कि जो एक फेस सेविंग एक्ट है, अब चूंकि दो किस्म के फेस हैं तो हमारे एक्ट भी दो किस्म के हो जाएंगे, ठीक है, कि एक ऐसा एक्ट हो जाएगा जो हमारे पॉजिटिव फेस को सेव कर सकता है, और ऐसा एक्ट जो हमारे नेगेटिव एक्ट को जो है वो सेव कर सकता है। गॉट इट? जब आपकी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखा जाएगा, आपको मजबूर नहीं किया जाएगा, तो आपके कौन सी फेस सेविंग हो रही है? नेगेटिव नेगेटिव, जी, जो नेगेटिव फेस सेविंग हो रही है, नेगेटिव फेस सेविंग हो रही है। और अगर आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी चीजों को इस तरह से किया जाता है, आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है, तो गोया आपका जो नेगेटिव फेस है उसको थ्रेट किया जा रहा है। और जब आपको कनेक्टेड समझा जाता है, मेंबर ऑफ अ ग्रुप समझा जाता है, तो आपके पॉजिटिव फेस की सेविंग हो रही है। एंड व्हेन यू आर आइसोलेटेड, व्हेन यू आर नो मोर कंसिडर्ड कनेक्टेड और अ मेंबर ऑफ द ग्रुप, तो आपके पॉजिटिव फेस की थ्रेटनिंग हो रही है। इज द पॉइंट क्लियर? Yes, sir. यस सर। सो अ फेस सेविंग एक्ट दैट एम्फसाइजेस अ पर्सन्स नेगेटिव फेस, तो वो हमारा एक्ट एक स्पीकर का एक्ट जो एड्रेसी या लिसनर के नेगेटिव फेस को जो है वो सेव करने की कोशिश है, विल शो कंसर्न अबाउट इम्पोजिशन। तो वो ये करेगा कि इसको इम्पोज ना किया जाए, और वो कहेगा आई एम सॉरी टू बॉदर यू, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी थी, आप अपोलोजाइज कर रहे हैं, ओके, आई एम सॉरी टू बॉदर यू, तो आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो इट मीन्स कि आप उसको चॉइस दे रहे हैं कि ओके, क्योंकि आप शो कर रहे हैं कि मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता, इसी वजह से हम कहते हैं ना, आई एम सॉरी टू जो है वो आस्क यू टू गो एंड ओपन द डोर, अदरवाइज तो आप कहते हैं कि गो एंड ओपन द डोर, या इस तरह से। तो हम ये कह रहे हैं, तो हम शो कर रहे हैं कि वो हमारे गुलाम का, हमारे हुक्म का गुलाम नहीं है। आई नो यू आर बिजी बट, ठीक है, आप बहुत मसरूफ होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप एक आध टाइम जो है वो निकाल लें, तो ये शो करता है कि आप उसके नेगेटिव फेस को सेव कर रहे हैं, कि वो इंडिपेंडेंट है। अ फेस सेविंग एक्ट दैट एम्फसाइजेस पर्सन्स पॉजिटिव फेस, और जो हमारा पॉजिटिव फेस को सेव करने वाला जो है वो एक्ट है, विल शो सॉलिडारिटी एंड ड्रॉ अटेंशन टू कॉमन गोल। वो आपको कनेक्टेड रखेगा, आइसोलेट नहीं करेगा। द सेम थिंग हैपन टू मी, लेट्स डू दिस टुगेदर। अब देखिए, आप उसको यही कहते हैं, ओके, कोई आपके साथ कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, तो आप कहते हैं कि ओके ओके, आई एम सॉरी टू हियर दिस, ओके, डोंट वरी, दिस इज नॉट द थिंग दैट हैपन टू यू ओनली, द सेम थिंग हैपन टू मी, मेरे साथ भी हुआ था, आई डिड दिस, मैंने ये किया था। अब आप उसको जो है वो कर रहे हैं कि आप कोई अलाई अगर मखलूक नहीं है जो है वो उसकी, तो या आप ये नहीं कह रहे, तो फिर हुआ तो हम क्या करें, ओके। तो हम उसको शामिल कर रहे हैं, अपना हिस्सा बना रहे हैं, लेट्स डू दिस टुगेदर, ओके। जब आप ये कहते हैं तो आप दूसरों को इनवाइट कर रहे हैं, तो इट मींस आप दूसरे को उस ग्रुप का मेंबर बना रहे हैं। तो इस तरह से करके आप उसके पॉजिटिव फेस को सेव कर रहे हैं, कि वो आइसोलेटेड नहीं है, वो एलियन नहीं है, वो बल्कि आप ही का हिस्सा है। जी, यहाँ तक इज द पॉइंट क्लियर? जी सर। यस सर। Yes, sir. Okay,
एक्चुअल जो इसका बस पॉइंट है ना, वो मतलब उसके अंदर तो वैसे वैसे अक्सर डिटेल है, लेकिन जो इसका मेन आइडिया वो जहाँ तक क्लियर है। जो रिमेनिंग है थोड़ा सा उसमें से गो थ्रू हो जाते हैं इफ समथिंग इज न्यू इधर है। आइडियाज अबाउट द एप्रोप्रिएट लैंग्वेज टू मार्क पोलाइटनेस डिफर सब्सटेंशियली फ्रॉम वन कल्चर टू द नेक्स्ट। अब ये जो हमने अभी देख रहे थे ना कि हम क्या करते हैं, अप्रोप्रिएटली हम लैंग्वेज को यूज करते हैं। डायरेक्ट किसी को कह देना कि जो है वो गिव मी दैट पेपर, ये कह देना जो है वो कुड यू गिव मी दैट पेपर, ये कह देना आई एम सॉरी टू बॉदर यू, प्लीज गिव मी दैट पेपर, आई नो यू आर बिजी बट कुड यू गिव मी दैट पेपर। अब ये क्या है, ये हम लैंग्वेज के अंदर ही चेंज कर रहे हैं। अब ये जो आइडियाज हैं कि आपने किस तरह से पोलाइटनेस के लिए लैंग्वेज को, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज को यूज करना है, तो ये जो आइडिया है इट डिफर्स फ्रॉम वन कल्चर टू एन अदर कल्चर। तो किसी कल्चर में पोलाइटनेस के लिए अप्रोप्रिएट लैंग्वेज आप किस तरह से यूज करेंगे, किसी कल्चर में किस तरह से करेंगे, तो यानी हर कल्चर के अंदर आपका जो वे है पोलाइटनेस शो करने का लैंग्वेज में, दैट मे डिफर, वो डिफरेंट हो सकता है। इज इट क्लियर कि किसी कल्चर के अंदर जस्ट टोन से आप जो है वो पोलाइटनेस शो कर सकते हैं, किसी कल्चर में आपका जो नॉन वर्बल है यानी बॉडी लैंग्वेज से आप पोलाइटनेस शो कर सकते हैं जस्ट, किसी कल्चर में आपका पूरा सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर चेंज करके पोलाइटनेस शो कर सकते हैं, किसी कल्चर में जस्ट इफ यू जो है वो ऐड सम वर्ड, जिस तरह से काइंड या प्लीज सेंटेंस के साथ ऐड कर लें, आप पोलाइटनेस का इजाफा कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंट कल्चर्स के अंदर जो है वो ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं। If you have grown up in a culture that has directness as a valued way of showing solidarity, अब यहाँ पे जो मतलब चीज डिस्कस की जा रही है वो ये है, अभी हमने अब भी एग्जांपल देखी थी और पहले भी हमने इम्प्लीकेचर में और स्पीच एक्ट में भी देखा था कि एक हमारा डायरेक्ट जो है वो स्पीच एक्ट है, डायरेक्टनेस है, जैसे हम कहते हैं गिव मी दैट पेपर, ये डायरेक्टनेस है। अब हो सकता है कि किसी कल्चर में ये जो डायरेक्टनेस है ये एक वैल्यूड वे ऑफ शोइंग सॉलिडारिटी हो, मतलब इसे बुरा ना समझा जाता हो, और किसी कल्चर में उसको बुरा समझा जाता हो। तो फिर इसलिए हमें ये जरूरी है कि हम ये देखें कि हम जिस अगर अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि और कल्चर से है, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि उस कल्चर के अंदर जो है वो डायरेक्ट जो एक एक्सप्रेशन है उसको क्या वैल्यू दी जाती है और इनडायरेक्ट को क्या दी जाती है, हमारे कल्चर में डायरेक्ट को क्या दी जाती है और इनडायरेक्ट को क्या दी जाती है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन लैंग्वेज कल्चरल आइडेंटिटी में हमने जब इसको डिस्कस किया था कि हम ये देखते हैं कि जिस अगर आपके पास मल्टी कल्चरल जो है वो कम्युनिकेशन है, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो फिर हमें जो है वो अपने कल्चर के साथ साथ उनके कल्चर के एलिमेंट्स को भी देखना पड़ेगा कि उनकी कल्चर के अंदर चीजें डिफरेंट हो सकती है हमारे कल्चर से, और अगर हम अपने कल्चर के मुताबिक उनको डील करेंगे द थिंग्स मे गो रॉन्ग, गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए इफ यू हैव ग्रोन अप इन अ कल्चर, आप एक ऐसे कल्चर का हिस्सा हैं कि जिसमें डायरेक्टनेस को वैल्यूड वे ऑफ शोइंग सॉलिडारिटी कहा जाता है, एंड यू यूज डायरेक्ट कमांड्स, आमतौर पर आप मुआशरे में इस्तेमाल करती हैं टू पीपल हुज कल्चर ओके और अगर आप इस डायरेक्ट कमांड को उन लोगों के साथ यूज कर लेते हैं जिनके कल्चर में जो है वो मोर ओरिएंटेड टू इनडायरेक्टनेस, उनके कल्चर में डायरेक्ट एक्सप्रेशन कम और इनडायरेक्ट ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है, एंड अवॉइडिंग डायरेक्ट इम्पोजिशन, और उसमें डायरेक्ट ऑर्डर कम दिए जाते हैं, देन यू विल बी कंसिडर्ड इम्पोलाइट। यानी इट मीन सिंपली कि अगर आपके कल्चर में डायरेक्ट एक्सप्रेशन अच्छे हैं, उनके जो है वो अच्छे नहीं समझे जाते, आप अपने कल्चर के मुताबिक यूज करेंगे तो आपको जो है वो समझा जाएगा कि आप पोलाइट नहीं है, आपको जो है वो कि आप गोया इम्पोज कर रहे हैं, आप उलट कर रहे हैं, तो आपको इम्पोलाइट समझा जाएगा। और अगर इसी तरह से सिंपली इट मीन्स कि हमें कम्युनिकेट करना चाहिए कीपिंग इन व्यू द कल्चरल वैल्यूज ऑफ द अदर पर्सन, उनके दरमियान कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, उनके दरमियान चाहे वो कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। हम अपने कल्चर के मुताबिक सही कर रहे हैं, उनके कल्चर में उसको चाहे वो उल्ट लिया जाता है, तो वो आपको इम्पोलाइट समझेंगे, और अगर उनके कल्चर में किसी चीज को अच्छा और आपके कल्चर में उसको नहीं उस तरह से दिया जाता, आप उनको इम्पोलाइट समझेंगे। इसलिए ये जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, द नॉलेज ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस दैट इज मस्ट इन ऑर्डर टू रिमूव दिस टाइप ऑफ मिसकॉन्सेप्शन। Am I clear? यस सर। सर Yes, मुझे sir. लग रहा है जैसे यहाँ की एग्जांपल Yes, आ sir. सकती है, जैसे वेस्टर्न पीपल आर मोर डायरेक्ट देन अस। जी जी, यस मरियम।
तो जैसे कि वेस्टर्न पीपल खास तौर पे अमेरिकन्स आर मोर डायरेक्ट देन अस, तो हमें वो इम्पोलाइट लगते हैं। ओके, ये टोन का, बिल्कुल टोन का उसके अंदर मौजूद है। जी जी जी, टोन भी है, और उनके उसके अंदर भी जो है वो हमारे हमें सिंटैक्टिक फोनोलॉजिकल ये चीज़ें उसके अंदर जब नज़र आती है, तो हो सकता है कि हम जो है वो या सम ऑफ अस जो है वो हम उनको जो है वो इम्पोलाइट समझे, क्योंकि वी आर जनरली हैबिचुअल ऑफ ब्रिटिश एक्सेंट या ब्रिटिश, तो इस तरह से दैट वे बी पॉसिबल। You in turn may think of the others as vague and unsure of whether they really want something or are just asking questions about it. इसी तरह से अगर जैसे are you using this chair, देखिए आप कमरे में बैठे हुए हैं, क्लास के अंदर आमतौर पे होता ही है कि हम लेक्चर ले रहे हो तो किसी को चेयर चाहिए तो वो आ जाता है। अब आपके साथ एक चेयर खाली पड़ी हुई है और वो बंदा आके पूछता है आर यू यूजिंग दिस चेयर। अब उसने इंटरैक्टिव क्वेश्चन पूछा है, सवाल पूछा है ना। अब आप कह दें कि नो आई एम नॉट यूजिंग इट, अब आपने तो सवाल का जवाब दिया है, तो लेकिन हो सकता है कि वो इनडायरेक्ट में आपसे ये पूछ रहा हो कि क्या ये कुर्सी आपको चाहिए तो नहीं मैं ले जाऊं। यही होता है ना आमतौर पे, वो कह रहे हैं जी कि कुर्सी खाली है, हो सकता है कमरे में कुर्सी खाली पड़ी है, स्टूडेंट ने आना हो, तो इनफैक्ट वो ये पूछ रहा है कि मैं चेयर लेके जा सकता हूँ। ओके, तो अब हमें पता है कि और स्टूडेंट नहीं हमारी क्लास के अंदर फारिग है, तो हम उसे कहेंगे कि चेयर ले जाओ, हम ये नहीं कहेंगे खाली, कहेंगे हाँ चेयर ले जाए आप, मतलब जो है वो, तो हमें क्योंकि हम अंदाजा लगा लेते हैं कि वो व्हाई इज ही आस्किंग। अब यही है कि हमें पता होना चाहिए कि एक डायरेक्ट जो है वो कैन यू आर यू यूजिंग दिस चेयर, अब ये अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या है, इंटरॉक्टिव सेंटेंस है, तो लेकिन जब ये रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है ये इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट है, ये इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट है, और ये इलोकेशनरी हमारा जो है वो एक्ट है, जो कि जो आपका एड्रेसी है, लिसनर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि वो उसकी अंडरस्टैंडिंग पे डेवलप करता है कि इसने पूछा तो सवाल है लेकिन इसके अंदर इनफैक्ट रिक्वेस्ट है कि मैं जो है ये चेयर ले जाऊं अगर आप माइंड ना करें तो ये चीजें हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। In either case, it is the pragmatics that is misunderstood, and unfortunately, more will often be communicated than is said. और यही pragmatics के अंदर मुसीबत होता है कि pragmatics में चूंकि चीजें जो है वो आमतौर पे वो नहीं होती जो कही जाती हैं, always वो नहीं मतलब होता जो कहा जाता है, तो sometime we say something else when we mean something else, we say something else and we intend something else, हमारा मतलब कुछ और होता है, तो something we say what we don't say, something we say what we don't say, हम वो कहते हैं जो हम एक्चुअली नहीं कहते, and the listener has to understand what is unsaid, जो हमने कहा नहीं, कहा तो हमने ये है आर यू यूजिंग दिस चेयर, कहा तो हमने ये है इट इज वेरी हॉट आउटसाइड, तो हमने कहा तो हमने ये है आपको सर्दी नहीं लग रही, मतलब हमारा कुछ और होता है। तो प्रैग्मेटिक्स इसमें यही है। तो अगर हम इस तरह से चीजों को प्रैग्मेटिकली अंडरस्टैंड नहीं करते तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो जो है वो कम्युनिकेशन हो सकती है और उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। The distinction between direct and indirect ways of communicating can be analyzed as different types of linguistic action behavior speech acts। ये हमने कल भी डिस्कस कर लिया था कि यही जो है कि हम डायरेक्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट कहते हैं, तो उसके अंदर हमारे स्पीच एक्ट्स होती हैं, डायरेक्ट स्पीच एक्ट्स हैं, इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट्स हैं, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देम इन डिटेल। So the students I think that things are clear, but still if you have any query, any problem, any question, feel free to ask please. No question, sir. Okay, then that's all for today, and see you next week inshallah. Now let's see what happens, कि आपसे जो है वो फिजिकल क्लासेस में कैंपस में मुलाकात होती है या द सेम मोड ऑनलाइन जो है वो इट कंटिन्यूज। सो इट्स टू बी डिसाइडेड until we receive a notification from the authorities. Okay, sir. Okay, sir. Okay then, Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz. जी Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. जी 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 Allah Hafiz.